So students, this will be the last video of the chapter areas related to circles, and in the series of long answer type questions it will be the fifth part and the last part also. So let's start doing the questions. And question number 1 is, OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equals to 2 centimeter, find the area of the number 1 quadrant OACB, number 2 shaded region. So first one, you have to find the area of the quadrant OACB. Means quadrant OACB. This one area you have to find out. Quadrant OACB, can you tell me what is quadrant OACB? This will be A. So OACB means this complete area. This complete area you have to find out. So I think you can find it. It is looking like just a sector of a circle. देखो सेक्टर की तरह दिख रहा है, जहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा और रेडियस जो आपकी होगी, ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस, ये आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर. तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. So let me solve this question here. Part 1 I am going to solve before you. Area of sector OACB. So let me write it. Area of sector OACB. So it will be how much? It will be theta upon 360 into pi r square. Theta is 90 degree divided by 360 multiply pi. Value of pi is 22/7 and r has been given here. How much it is? 3.5. This is our radius. Okay, so write is 3.5 square. It is there, so you can write it 2 times. Okay, now just cut it. You can cut it also. 94 times 360, and this 7 will cut this 3.5 0.5 times. Okay, so your answer is going to be 22 multiply 3.5 multiply 0.5 divided by 2. So it will be 22 multiply 0.5 multiply 3.5 divided by 2. Okay, so by multiplying it will come around 19.25 divided by 2 centimeter square. So this will be the area of the quadrant OACB. Is it clear? OACB. Now next one, second part of the question is, you have to find the area of the shaded region. Shaded region, can you tell me which one is the shaded region? Shaded region is this one, which has been shaded blue here. So this is the shaded region. It's the area you have to find out. So can you find it? Yes, we can find it. How will you find? We will find it. First we will find the area of the complete sector. This one complete sector. This we have already found. Okay, then you will find the area of the small sector. Okay, एंड देन यू विल सबट्रैक्ट इट. देखो पहले बड़े वाले सेक्टर की एरिया आप निकालोगे, आप जो बड़ा वाला सेक्टर है, और उसमें जो अंदर का ही छोटा वाला सेक्टर है, इसकी सेक्टर की एरिया निकालोगे, दोनों को आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन का. ठीक है डियर. सो लेट्स राइट इट. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड region. So it will be area of shaded region is area of quadrant OACB minus quadrant which one area? ये छोटा वाला क्वाड्रेंट के एरिया निकालेंगे ना. क्या है छोटा वाला क्वाड्रेंट? OD. ये पॉइंट कुछ मान लो ODPO, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं आप. ODPO ऐसा लिख लो उसमें. ठीक है ना. माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODPO. देखो इसकी एरिया तो अभी आपने निकाली है 19 पॉइंट कितना निकला था 25 डिवाइडेड बाई 2. इसकी आपको निकालनी पड़ेगी एरिया. इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर.
So it will be around, just put the value, it will be 19.25 divided by 2, 19.25 divided by 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर कितना दिया आपको छोटे वाले सेक्टर के लिए दिया है, इट हैज़ बीन गिवन देयर 2, देखो 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। ओके, अब चाहो तो आप कट कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा आपका 90, इसको 4 टाइम कट कर लेगा और ये 4 आपका इसको कट कर लेगा, ठीक है डियर। तो आपका आंसर आएगा 19.25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22/7। क्लियर है, क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो आंसर है आपका 19.25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22/7। इनको आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। OACB आपको जो इसमें दिया है ना, वो कह रहा है कि OACB इज इंस्क्राइब्ड, OACB जो आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर एक सेक्टर के अंदर, यानी ये बोलो तो क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया, इंस्क्राइब मीन्स अंदर बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट था आपका, ये क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, दिख रेक्टेंगल जैसा रहा है, थोड़ा पिक्चर लेने में वो हो गया, एनलार्ज हो गया था ये तो, बट दिस इज स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बना है क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है इसमें, तो सिंपल तो है ना, क्या करेंगे आप, तो एक पहले आप पूरे क्वाड्रेंट के एरिया निकालेंगे। फर्स्ट विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रेंट, इसके एरिया निकालेंगे। इसमें से आप फिर क्या करेंगे, जो आपका अंदर स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है, स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। माइनस करते ही आपका जो शेडेड जो ब्लू पोर्शन है, शेडेड रीजन की एरिया आपकी आ जाएगी। क्लियर है, सो राइट डाउन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सीधे लिख लेते हैं विदाउट गेटिंग लेट। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता है क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका साइड स्क्वायर, ठीक है। सो पुट द वैल्यूज, थीटा अपॉन 3, थीटा यहाँ पर कितना होगा जरा बता सकते हैं आप, थीटा देखो 90 डिग्री है, ठीक है डियर, तो 90/360 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो आप करेंगे इसको 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना दिया आपको, ये क्वाड्रेंट के लिए आर क्या होगा बता सकते हैं आप, आर आपको नहीं दिया है, देखो आर आपकी ये डिस्टेंस होगी, लेकिन ये डिस्टेंस आपको दी नहीं गई है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो आपका साइड, स्क्वायर का साइड आपको पता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। स्क्वायर की साइड कितनी दी है आपको, OA 21 दिया है, तो ये 21 है, तो ये भी 21 है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/√2। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड इंटू √2, तो साइड आपकी 21 है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइड इंटू √2 ये डायगोनल हो जाएगा, और यही डायगोनल आपका रेडियस हो जाएगा क्वाड्रेंट, ये बड़ा वाला जो क्वाड्रेंट है आपका OPBQ का, ठीक है। तो 21√2 ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है डियर। तो हम यहाँ पर रेडियस की जगह लिखेंगे 21 इंटू √2 का स्क्वायर, मीन्स 21 इंटू √2 मल्टीप्लाई 21 इंटू √2। इसमें से आपको माइनस करना है स्क्वायर की एरिया। अच्छा, स्क्वायर की एरिया क्या होती है बता सकते हैं आप, स्क्वायर की एरिया होती है साइड स्क्वायर, तो साइड आपको 21 दिया है, स्क्वायर का साइड तो आपको 21 दिया है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे आप। क्लियर है, 21 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 21 का स्क्वायर, 441। क्लियर है, बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो आंसर कितना आ सकता है आपका, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 94 टाइम्स ये कट हो गया, ठीक है ना बच्चों, और ये 7 आपका 21 को 3 टाइम्स कट कर लेगा, ठीक है ना, और ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 आ जाता है आपका, आता नहीं आता है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा,
और ये 2 आपका 4 को कट कर लेगा 2 टाइम्स, क्लियर है। और ये 2 आपका इस 22 को कट कर लेगा 11 टाइम। तो आपका आंसर कितना है भाई, वेरी इजी, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, इतना ही तो बचा है ना। तो आपका आया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 माइनस 441, मल्टीप्लाई करो 441 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, now we are moving to the next question, and your next question is OACB is a square of side 7 centimeter if OAPC is a quadrant of a circle with center O, then find the area of the shaded region। इसमें भी आपको shaded region की एरिया निकालनी है। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, एक तो बड़ा सा आपका ये सर्कल, ये सॉरी स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर में से अगर आप ये क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं ना आप क्या कहा हमने कहा अगर आप स्क्वायर में से, देखो बड़ा इसमें स्क्वायर है ना, है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप स्क्वायर की एरिया निकाल लेते हैं, इसमें आप जो अंदर क्वाड्रेंट की बना है इसकी एरिया को माइनस कर लेते हैं येलो वाले की, तो आपका ब्लू वाली एरिया मीन्स शेडेड पोर्शन की एरिया आपकी आ जाएगी। क्लियर है। सो जस्ट स्ट्रेट वे सॉल्व दिस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या लिखोगे इसमें आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है बताओ भाई, साइड स्क्वायर होता है, सिंपल है। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मीन सेक्टर, ये तो वही होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, साइड कितनी दी है आपको, स्क्वायर की साइड कितनी दी है, देखो साइड 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जो स्क्वायर की साइड होगी ना, वही साइड ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस होगी। मानते नहीं मानते इस बात को, देखो स्क्वायर की जो साइड है वही वो ये साइड ही तो ये आपका जो क्वाड्रेंट बना है इसकी रेडियस बन जाएगी, है ना। यस, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 49। लेट मी राइट करेक्टली, साइड स्क्वायर दिया है तो साइड 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस थीटा 90/360 मल्टीप्लाई पाई 22/7 इंटू आर, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है ना। तो आपका आंसर आ गया। इसमें कटिंग कर लो थोड़ा, कटिंग हमने एक तो कर दिया, दूसरा आप 90 से इसको कट कर सकते हो 4 टाइम, और ये 4 से 22 भी कट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स 4 कट हो जाएगा, 2 टाइम्स 22 कट हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना आना है इसमें, आपका आंसर आना है 49 माइनस, ये आ गया आपका 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी कट हो जाएगा 11 टाइम एंड 2 टाइम, तो आंसर आ गया 49 माइनस 77/2। मानते नहीं मानते इस बात को, करेक्ट है ना, वेरी गुड। तो आपका आंसर है 49 माइनस 77/2। आंसर कितना है, आंसर आपका 49 माइनस 77/2, करेक्ट है, वेरी गुड। तो एलसीएम ले लो, 49 2 जा 98 हो जाएगा, एलसीएम 2 लेंगे तो आप एलसीएम को 2 लेंगे ऐसे, तो आपका आंसर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर विल बी हाउ मच, 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर है, क्लियर है, पक्का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बिफोर दिस यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी but difficult to understand. Yeah, it is saying that a circle is inscribed in an equilateral triangle ABC of side 12 cm touching the sides. Find the radius of the inscribed circle and the area of the shaded part. तो आपको कह रहा है कि एक सर्कल बनाया गया है, इंस्क्राइब किया गया मीन्स अंदर बनाया गया है, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो बाहर से तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है इसमें, दिस इज यूर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाहर से आपका क्या बना है इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया गया। आपको निकालना है पहले तो इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, दूसरा आपको ये जो शेडेड पोर्शन येलो कलर का दिख रहा है इसकी एरिया आपको निकालना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल लेते हैं। देखो
ट्रायंगल के एरिया को मैं क्यों निकाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। अभी अभी इसका आपको समझ में आ जाएगा आइडिया, वाई आई एम फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बना है ना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया पहले मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट मी राइट इट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, क्या होती है बताओ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया भाई, √3/4 इंटू साइड कितना दिया है बताओ, बताओ कितना दिया आपको साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 12 सेंटीमीटर। सो राइट दिस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये इससे कट हो जाता है कितने टाइम्स, 36 टाइम। कैलकुलेशन फटाफट करो। सो 36/√3 ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आ गई है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं एक चीज निकाल रहा हूं, मुझे देखो मुझे सर्कल की रेडियस चाहिए। तो इस सर्कल जो इंस्क्राइब सर्कल होता है ना आपका, इसकी रेडियस निकालने का एक शॉर्ट सा फंडा है। क्या फंडा है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये होता है आपका बच्चों, क्या होता है, ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझे आप, एरिया ऑफ क्या काम ने ट्रायंगल, जैसे बता रहा हूँ लिख भी लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। समझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको आप सॉल्व करो, आपकी रेडियस आ जाएगी सर्कल की। चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब भी हमने निकाला है, कितना निकाला 36/√3। पुट द वैल्यू 36/√3। तो आर रेडियस इज इक्वल हो जाएगा 36/√3 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। एक साइड 12 है, सेकंड साइड भी 12 है, थर्ड साइड भी 12 है। सो 12 + 12 + 12 हाउ मच, 36। 12 3 36 ना, यस। तो ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू √3। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस निकल गई है। अब दूसरा आपको एक चीज और निकालनी है, रेडियस तो निकालनी थी, आपको निकल गई है। वन मोर थिंग यू हैव टू फाइंड एंड दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो अब तो वेरी इजी हो गया, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, हाउ विल यू फाइंड आउट। सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट में जो येलो कलर का पार्ट है, क्या करेंगे हम, ट्रायंगल की एरिया जो हमने निकाली है उसमें से हम सर्कल की एरिया को माइनस कर देंगे। वेरी इजी, ओके। सो नाउ राइट डाउन एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, area of the shaded part. I'm writing here area of the shaded part। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्या है अंदर सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है 36/√3, सबसे पहले यही निकाला मैंने, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है πr²। तो आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है 3.14 दिया गया है, ठीक है। एंड आर रेडियस अब भी आपने निकाला है 2√3 निकाला था अभी आपने, कहाँ निकाला, ये निकाला, ओके। सो पुट दिस वैल्यू, सो यू हैव टू राइट देयर इज इक्वल टू 36/√3 माइनस पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा पाई की वैल्यू का ऐसा है ना, जब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा पुट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 3.14, तब आपको पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, अदरवाइज यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। नहीं दिया है तो इतना ही लिखना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तो दिया है 3.14 पाई r², आर आपने निकाला है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा आपका ये 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। Just solve it, it will be 36/√3 minus
माइनस कितना हो जाएगा, देखो देखो बच्चों, 2 2 जा 4 होता है और अंडर रूट 3 थ्री हो जाता है। देखो 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो गया, तो 4 3 से कितना हो गया 12। सो हो जाएगा आपका ये 3.14 मल्टीप्लाई 12। तो इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितना दिया है, अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है आपको 1.73, अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, so this is how we will solve these questions, and this is how we are going to finish the chapter, that is areas related to circles. So I urge to all the students to go through all the videos. Two types of video I have made there, one short answer type questions, some parts are there, and some are long answer type questions, some parts are there. So you go through all those parts, your chapter is going to be clear now. Okay, there will be no problem at all. Okay, just go through these all the parts. Okay, okay then, thank you.